Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start interaction energy in JJ coupling, and in our previous lecture we have calculated the interaction energy in LS coupling for the two valence electron case, and we have calculated the interaction energy for sp configuration in LS coupling. We will do the same for JJ coupling. We will calculate the interaction energy for PS configuration in case of JJ coupling. So starting with the interaction energy for the single valence electron atom, that is given by gamma. So we know that the interaction energy for the single valence electron is given by gamma factor, and gamma factor is equals to A dot J star का square minus S star का square minus S star का square divided by 2, and gamma is equals to A into L star S star cos of L star S star, that is given by equation number 1, and where A is equals to R alpha square Z4 n cube L plus 1 by 2 L plus 1. Since the angle L1 star S1 stars are fixed, so gamma 3 gamma 4 कैन बी रिटन बाय यूजिंग जो है कोसाइन लो. तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो हमें पता है कि जो L1 S1 है इनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि जो L1 S1 है वो दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट द रिजल्टेंट J1, यानी कि जो L1 S1 जो है वो इंट्रैक्ट करके जो है हमें क्या दे देंगे, रिजल्टेंट J1 दे देंगे, यानी कि L1 S1 के जो बीच का एंगल है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, और ऑलवेज फिक्स्ड है, और ये क्या करने लग जाएंगे, दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट द रिजल्टेंट J1, और वी कैन से दैट L2 S2 के बीच का एंगल दैट इज फिक्स्ड, और दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट द रिजल्टेंट J2. सो हम जो है बाय अप्लाइंग कोसाइन लो हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos इंटू L1 स्टार S1 स्टार इज इक्वल्स टू J स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L1 स्टार S1 स्टार. क्लियर है यहाँ तक? ऐसी cos ऑफ L2 स्टार S2 स्टार दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट द रिजल्टेंट J2 स्टार विथ फिक्स्ड एंगल्स, यानी कि इनके बीच का जो एंगल रहेगा दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड. तभी हम कोसाइन लो से हम लिख सकते हैं J2 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L2 स्टार S2 स्टार. So in case of two valence electron, there are 4 angular momenta with 6 possible interactions. Means we know that every electron has a definite orbital and spin angular momenta. So for first electron in the orbital angular momenta that is given by L1 star, and spin angular momenta that is given by S1 star, and the orbital angular momenta for the second electron that is given by L2 star, and the spin angular momenta for the second electron that is given by S2 star. So we have orbital angular momentas and spin angular momentas. So there are 6 possible ways in which these angular momenta will interact with each other. So what are the 6 possible interactions? That is S1 star with S2 star. So S1 star यानी कि spin angular momenta of first electron interact with the spin angular momenta of second electron. Orbital angular momenta of first electron interact with the orbital angular momenta of second electron. थर्ड इंट्रैक्शन क्या हो सकती है कि L1 star with S1 star means orbital angular momenta of first electron interact with its own जो है spin angular momenta of first electron, or we can say that the spin angular momenta for the second electron interact with its own जो है spin orbital angular momenta for the second electron. So L2 star with S2 star and L1 star with S2 star, that means the orbital angular momenta for the first electron interact with the spin angular momenta for the second electron, and the orbital angular momenta for the second electron will interact with the spin angular momenta for the first electron. So in JJ coupling we know that the interaction third and fourth predominates over first and second. So the interaction जो है यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटा जो है इंट्रैक्ट विद इट्स ओन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा जो है, ये जो इंट्रैक्शन है दैट इज मोर पावरफुल देन एल एस सिंपल, यू कैन से सिंपल एल आईज की कपलिंग और सिंपल एस आई की कपलिंग, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग और सभी इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम की इंडिविजुअल कपलिंग से जो है ज़्यादा पावरफुल कौन सी कपलिंग है कि जो ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटा जो है वो अपने ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा के साथ इंट्रैक्ट करे. यानी कि जो थर्ड एंड फोर्थ है इसमें क्या हो रहा है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटा है खुद का इलेक्ट्रॉन का वो खुद के ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा से क्या कर रहा है, इंट्रैक्ट कर रहा है. सो दैट इज मोर एंड मोर डोमिनेटिंग देन द S1 स्टार S2 स्टार, यानी कि S1 की इंट्रैक्शन S2 के साथ और L1 की इंट्रैक्शन L2 के साथ. सो
द फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज निग्लिजिबल। और जो फिफ्थ और सिक्स्थ इंट्रैक्शन है कि जो ऑर्बिटल एंग्लोमेंटा जो है फर्स्ट का स्पिन एंग्लोमेंटा सेकंड के साथ, या स्पिन एंग्लोमेंटा फर्स्ट का ऑर्बिटल एंग्लोमेंटा सेकंड के साथ, ये जो इंट्रैक्शन है दैट इज निग्लिजिबल, और हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इन सभी के लिए जो है इंट्रैक्शन एनर्जी लिखूँ, सो इंट्रैक्शन एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दीज इंट्रैक्शंस वी हैव gamma 1 that is showing the interaction between S1 and S2 star. So A S1 star S2 star cos of S1 star S2 star. Gamma 2 is showing the interaction between the two orbital angular momentas. So A2 into L1 star L2 star cos of L1 star L2 star. Similarly, gamma 3 is showing the interaction between the spin angular momenta for the first electron with its own orbital angular momenta. So A3 into L1 star S1 star cos of the angle between L1 star and S1 star. Similarly, gamma 4 is showing the interaction between A4 L2 star and S2 star cos of L2 star into S2 star. ऐसी gamma 5 that is showing the interaction between L1 star with S2 star, यानी कि A5 L1 star S2 star cos of L1 star S2 star. ऐसी gamma 6 is equal to A6 L2 star S1 star cos of L2 star and S1 star. क्लियर हो गया? So write it as equation number 6. And we know that the interaction जो है थर्ड एंड फोर्थ predominates over फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फिफ्थ एंड सिक्स इज निग्लिजिबल. सो हम जो है सिर्फ और सिर्फ यही इंट्रैक्शंस जो है क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे, गामा 1 गामा 2 गामा 3 एंड गामा 4. और गामा 5 और गामा 6 को हम मान के चलेंगे दैट इज निग्लिजिबल स्मॉल, और वी कैन इग्नोर दिस इंट्रैक्शन एनर्जीज. सो जो भी हमारे पास इंट्रैक्शन एनर्जी आएंगी वो बेसिकली जे कपलिंग के अकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ गामा 1 गामा 2 गामा 3 और गामा 4 की वजह. सिंस द एंगल L1 स्टार S1 स्टार्स आर फिक्स्ड, सो गामा 3 गामा 4 कैन बी रिटन बाय यूजिंग जो है कोसाइन लो. तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो हमें पता है कि जो L1 S1 है इनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि जो L1 S1 है वो दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट द रिजल्टेंट J1, यानी कि जो L1 S1 जो है वो इंट्रैक्ट करके जो है हमें क्या दे देंगे, रिजल्टेंट J1 दे देंगे, यानी कि L1 S1 के जो बीच का एंगल है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, और ऑलवेज फिक्स्ड है, और ये क्या करने लग जाएंगे, दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट द रिजल्टेंट J1. और वी कैन से दैट L2 S2 के बीच का एंगल दैट इज फिक्स्ड, और दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट द रिजल्टेंट J2. सो हम जो है बाय अप्लाइंग कोसाइन लो हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos इंटू L1 स्टार S1 स्टार इज इक्वल्स टू J स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L1 स्टार S1 स्टार. क्लियर है यहाँ तक? ऐसी cos ऑफ L2 स्टार S2 स्टार दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट द रिजल्टेंट J2 स्टार विथ फिक्स्ड एंगल्स, यानी कि इनके बीच का जो एंगल रहेगा दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड. तभी हम कोसाइन लो से हम लिख सकते हैं J2 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L2 स्टार S2 स्टार. नाउ राइट दिस इक्वेशन एज स्टार एंड दिस इक्वेशन एज स्टार स्टार. सो हम क्या करेंगे, ये जो गामा 3 और गामा 4 के अंदर जो है ये कोसाइन की वैल्यूज जो हम क्या करने वाले हैं, सब्सटीट्यूट करने वाले हैं. तो हमें पता है जो ये गामा 3 और गामा 4 के अंदर हम जब कोसाइन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास मॉडिफाई होकर क्या आ जाएगा, गामा 3 इज इक्वल्स टू A3 L1 स्टार S1 स्टार. सो यहाँ पे हमारे पास जो मॉडिफाई होकर आएगा वो क्या हो जाएगा, J1 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L1 स्टार S1 स्टार. क्लियर है? सिमिलरली गामा 4 हमारे पास क्या से लिखा जाएगा, A4 L2 स्टार S2 स्टार, तो J2 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L2 स्टार S2 स्टार. अब यहाँ से L1 स्टार S1 स्टार से L1 स्टार S1 स्टार कैंसिल, यहाँ से L2 स्टार से S2 स्टार से L2 स्टार S2 स्टार कैंसिल. तो गामा 3 क्या हो जाएगा, A3 बाय में 2 J1 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर. और गामा 4 हमारे पास यानी कि इंट्रैक्शन एनर्जी फोर्थ केस के लिए क्या आ जाएगी, A4 बाय में 2 J2 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर. सो इस इक्वेशन नंबर आप कह लो थर्ड. तो ये जो है हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड है. तो हमने देखा कि L1 S1 और L2 S2 जो है दे स्टार्ट प्रोसेसिंग विद देयर फिक्स्ड एंगल्स अराउंड J1 एंड J2 स्टार. अब J1 स्टार एंड J2 स्टार जो है दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट द रिजल्टेंट J स्टार. सो J1 स्टार एंड J2 स्टार क्या करने लग जाएंगे, अपने रिजल्टेंट J स्टार के अराउंड जो है क्या करने लग जाएंगे, प्रोसेस करने लग जाएंगे. सो इन दैट केस हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से जो है वेक्टर डायग्राम से अगर मैं शो करूँ जे कपलिंग की तो इस तरह से शो होगा आपके पास कि मान के चलो ये हमारा S2 स्टार है, ये S1 स्टार है, ये S2 स्टार है, ठीक है ना. दिस इज योर L1 स्टार एंड दिस इज योर L2 स्टार, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा जो है सेकंड के लिए एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा फर्स्ट के लिए. सो दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट देयर रिजल्टेंट जो है J2 स्टार, ऐसी दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट देयर रिजल्टेंट J1 स्टार. एंड देन
J2 स्टार एंड J1 स्टार जो है दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट देयर रिजल्टेंट जो है J स्टार, तो J स्टार के अबाउट क्या करने लग जाएंगे, यानी कि अगर ये J2 स्टार वेक्टर है एंड दिस इज योर J स्टार वेक्टर, सो दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट देयर, ये इसके अराउंड जो है क्या करने लग जाएगा, इस तरह से जो है प्रोसेस करने लग जाएगा। ऐसे ही J1 स्टार वेक्टर अगर यहाँ है तो ये भी क्या करने लग जाएगा, J स्टार के अराउंड जो है प्रोसेस करने लग जाएगा। सो अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ तो हमें पता लग गई कि जो इंट्रैक्शन एनर्जी है थर्ड एंड फोर्थ केस के लिए दैट इज़ ऑलवेज फिक्स, ठीक है ना, क्योंकि हमारे कोसाइन लॉज क्या रहेंगे, हमेशा फिक्स रहेंगे। सो व्हाट अबाउट द इंट्रैक्शन एनर्जी फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड केस, तो फर्स्ट और सेकंड केस के लिए क्या होगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड केस के लिए यानी कि इंट्रैक्शन S1 और S2 के बीच की जो इंट्रैक्शन है, ये जो ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है दोनों का क्या करेगा, जब इंट्रैक्ट करेगा तो इनके जो बीच के एंगल्स होंगे वो कंटिन्यूसली क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, यानी कि S1 S2 जो एक फिक्स्ड एंगल से मूव नहीं करेंगे, तो इनके एंगल्स जो कंटिन्यूसली क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ऐसे ही दोनों का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स जो हैं वो भी क्या होते जाएंगे, दोनों के फिक अलग एंगल से जो है उनके एंगल्स जो है कंटिन्यूसली उनके भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो यानी कि इनके बीच के एंगल्स जो है हर बार क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। सो दैट मीन्स जो है हमें क्या लेना पड़ेगा, कोसाइन की एवरेज वैल्यू हमें जो है लेनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या कंसीडर करने वाले हो, एवरेज वैल्यू ऑफ कोसाइन S1 स्टार S2 स्टार एंड कोसाइन L1 स्टार एंड L2 स्टार। तो हमें जो है इस, क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल्स हैं बिटवीन S1 एंड S2 स्टार दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, ऐसी L1 स्टार एंड L2 स्टार के बीच के एंगल दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। सो इन दैट केस वी हैव टू टेक द एवरेज वैल्यूज ऑफ दीज टू कोसाइंस। तो हमें इन दोनों कोसाइंस की क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो हमारी एवरेज वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, so average value of cosines can be calculated by taking the projection of J1 star on S1 star on J1 star, J1 स्टार ऑन J2 स्टार एंड J2 स्टार ऑन S2 स्टार। तो क्या करेंगे हम जो है S1 की प्रोजेक्शन हम लेंगे J1 स्टार पे, S1 की हम देखेंगे प्रोजेक्शन J1 स्टार पे, फिर J1 स्टार की प्रोजेक्शन हम दोबारा से देखेंगे J2 पे, एंड देन J2 से हम किस पे जाएंगे, दोबारा से S2 स्टार पे। तो हमारे पास जो है कोसाइन S1 S2 स्टार इस तरह से लिखी जाएगी, इनकी एवरेज वैल्यू तो हमने बार से डिनोट की है। तो कॉस ऑफ S1 स्टार की प्रोजेक्शन J1 पे, कॉस ऑफ J1 स्टार की प्रोजेक्शन J2 पे, एंड कॉस ऑफ J2 स्टार की प्रोजेक्शन किस पे, S2 स्टार पे, ठीक है। सो सिमिलरली कॉस ऑफ L1 L2 स्टार जो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉस ऑफ L1 स्टार J1 स्टार, कॉस ऑफ J1 स्टार L2 स्टार एंड कॉस ऑफ J2 स्टार L2 स्टार। सो सिमिलरली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारा कॉस, अगर हम उसकी बात करते हैं L1 और L2 स्टार की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, L1 की हम देखेंगे इमेज J1 पे, और J1 की फिर हम देखेंगे J1 स्टार की J2 पे, एंड J2 स्टार की फिर हम जो है प्रोजेक्शन किस पे देखेंगे, L2 स्टार पे। तो हमने दोनों की एवरेज वैल्यू लिख ली। तो सम ऑफ इंट्रैक्शन एनर्जी अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो Γ1 प्लस Γ2 चेंज होके किस तरह से आ जाएगा, A1 इंटू S1 स्टार S2 स्टार था, कॉस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार था, अब क्या हो जाएगा एवरेज, ऐसे ही प्लस A2 स्टार A2 इंटू L2 स्टार L1 स्टार, ठीक है ना, L1 स्टार A2 स्टार L2 स्टार, तो कॉस ऑफ L1 स्टार L2 स्टार, तो इसका क्या हो जाएगा एवरेज। तो हम जब ये जो एवरेज वैल्यू हमने निकाली है कॉस ऑफ S1 स्टार J1 स्टार, ठीक है ना, कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार, कॉस ऑफ J2 S2 स्टार, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, कॉस ऑफ L1 स्टार L2 स्टार की एवरेज वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ की जो वैल्यूज़ हैं, फोर्थ इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हम इसके अंदर जो है क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो रिजल्ट देखो, सो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, सो Γ3 प्लस Γ4 जो है, सॉरी Γ1 प्लस Γ2 दैट इज गिवन बाय, सो Γ1 प्लस Γ2 दैट इज गिवन बाय क्या, A1 S1 स्टार S2 स्टार था, ठीक है ना। अब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो कॉस ऑफ S1 स्टार J1 स्टार, कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार, कॉस ऑफ J2 स्टार S1 स्टार S2 स्टार प्लस A2 L1 स्टार L2 स्टार था, कॉस ऑफ L1 की प्रोजेक्शन J1 पे, कॉस ऑफ J1 की प्रोजेक्शन J2 स्टार पे, एंड कॉस ऑफ J2 स्टार की प्रोजेक्शन किस पे, L2 स्टार पे। सो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे कोसाइन लॉज लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है S1 स्टार और J1 स्टार के बीच के एंगल और J2 S2 स्टार के बीच का एंगल दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ऐसी L1 स्टार और J1 स्टार के बीच का एंगल और J2 स्टार L2 स्टार के बीच का एंगल हमने फिक्स मान के चला। सो इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई द कोसाइन लॉ। सो कोसाइन लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, A1 S1 स्टार S2 स्टार एज इट इज़, इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि J1 स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ किसका होगा आपका,
L1 स्टार का, क्योंकि हमें पता है L1 S1 एंड J1, क्योंकि हमें पता है इनके बीच का एंगल जो है, यानी कि L1 और S1 के बीच का एंगल क्या हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना, क्योंकि L1 और S1 का बीच का एंगल हमेशा क्या था, फिक्स था, और वो रिजल्टेंट J1 के अराउंड क्या कर रहा था, प्रेसेस कर रहा था। तो हमने कोसाइन लो लगाया, तो क्या आ जाएगा, J1 स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ J1 स्टार और S1 स्टार। कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार एज इट इज, ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, J2, ये जो है J1 S1 L2 किसके अराउंड प्रेसेस करेंगे, J2 के बीच के, तो इनके बीच का L2 और S2 के बीच का भी एंगल क्या था, फिक्स था, तो कोसाइन लो लगाएंगे, तो J2 स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ L2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ J2 स्टार L2 S2 स्टार। सिमिलरली A2 आप लिखोगे, L1 और L2 स्टार जो है, कॉस ऑफ L1 J1 स्टार, इनके बीच का एंगल अगर फिक्स्ड है, ठीक है ना, कोसाइन लो लगाओगे तो J1 स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या होगा हमारा, S1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ J1 स्टार L1 स्टार, कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, J2 स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ किसके बीच का एंगल था, J2 स्टार एंड L2 स्टार के। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो J1 स्टार S1 स्टार, अब S1 स्टार से S1 स्टार कैंसिल, S2 स्टार से S2 स्टार कैंसिल, सो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, ये तो A1 एज इट इज रहेगा, J1 स्टार का स्क्वायर S1 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस J1 बचना था, यहाँ से J2 स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ L2 स्टार का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ J2 स्टार बचना था। अब हमने क्या किया, J1 स्टार से डिवाइड कर दिया, J1 स्टार से मल्टीप्लाई, तो J1 स्टार का स्क्वायर हो गया, J2 स्टार से डिवाइड कर दिया, J2 स्टार से मल्टीप्लाई करती है तो J2 स्टार का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पे क्या आ गया, J1 स्टार और J2 स्टार ऐड हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। प्लस ऐसे ही A2 आप लिखोगे, L1 स्टार और L2 स्टार दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, हम J1 स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, J1 J2 स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, J1 स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ S1 स्टार का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ J1 स्टार का स्क्वायर इंटू J2 स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ J2 स्टार का स्क्वायर, J1 J2 स्टार का स्क्वायर, J1 स्टार J2 स्टार कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार। अब क्या करोगे आप, J1 स्टार J2 स्टार कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब A1 के साथ ये सारी टर्म मान ली B1 है, A2 के साथ ये सारी टर्म हमारी क्या है, B2 है, सो मैंने लिखा A1 B1 प्लस A2 B2। अब ये जो टर्म है इसको भी मैंने फर्दर एक नाम दे दिया A कांस्टेंट, ठीक है ना, ये वाली टर्म को मैंने नाम दे दिया A। तो J1 स्टार J2 स्टार कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार, अब इसके बीच का एंगल हमें देखना है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, J1 J2 दे स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट द रिजल्टेंट J। हमें पता है कि जो J1 J2 है वो किसके अबाउट, रिजल्टेंट J के अबाउट जो है प्रोसेस कर रहा है, सो क्या हो जाएगा, J स्टार का स्क्वायर माइनस J1 स्टार का स्क्वायर माइनस J2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ट्वाइस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार, और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A/2 J स्टार का स्क्वायर माइनस J1 स्टार का स्क्वायर माइनस J2 स्टार का स्क्वायर। सो इसे कह लो इक्वेशन नंबर 5। सो हमारे पास A क्या है, A1 B1 प्लस A2 B2, और B1 क्या है हमारे पास, J1 स्टार का स्क्वायर प्लस दैट इज गिवन बाय प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ J1 स्टार का स्क्वायर, ऐसी J2 स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ L2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ J2 स्टार का स्क्वायर। सो ये ऊपर वाली इक्वेशन आपकी 5th है, ये 6th इक्वेशन है, इसे कह लो 7th इक्वेशन। ऐसी B2 मैंने क्या लिया है, J1 स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ S1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ J1 स्टार का स्क्वायर इंटू J2 स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ S2 स्टार का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ J2 स्टार का स्क्वायर। सो ये हमारी जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन है आपकी 7। तो हमारे पास जो है A क्या है, A1 B1 A2 B2, ये याद रखना क्योंकि इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना, जब हम PS कॉन्फ़िगरेशन के लिए सॉल्व करेंगे। सो अब देखो हमारे पास गामा 1 भी आ गया, गामा 2 भी वी हैव कैलकुलेटेड। गामा 1 हमने निकाला था 3rd इक्वेशन से और 4th इक्वेशन से, गामा 1 गामा 3 और गामा 4 जो है 3rd 4th इक्वेशन से, और गामा 1 प्लस गामा 2 का सम हमको किसने दे दिया, 5th इक्वेशन ने दे दिया। सो अगर मुझे जो है किसी फाइन स्ट्रक्चर लेवल की टर्म वैल्यूज़ लिखनी है तो मैं क्या करूँगी, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आई हैं इंट्रैक्शन एनर्जीज, तो मैं एक हाइपोथेटिकल लेवल से जो है इन इंट्रैक्शन एनर्जी का अगर मैं क्या ले लूँ, डिफरेंस ले लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएंगी, टर्म वैल्यूज़ मिल जाएंगी
फाइन स्ट्रक्चर लेवल के लिए। सो गामा जो है दैट इज गामा से हम डिनोट करेंगे। तो गामा नोट क्या है, इन्हीं सभी का जो इंट्रैक्शन एनर्जी का सम है, इसको मैं क्या कर दूं हाइपोथेटिकल लेवल से, यानी कि गामा नोट से जो है, जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे तो उससे हम देखें तो हमें क्या मिल जाएंगी, फाइन स्ट्रक्चर लेवल मिल जाएगा। फाइन स्ट्रक्चर लेवल बेसिकली क्या होता है कि एक जो लेवल है वो फर्दर जो है अपने हाइपोथेटिकल लेवल से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो गामा इज इक्वल्स टू गामा नॉट माइनस गामा 1 गामा 2 गामा 3 माइनस गामा 4। सो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो लेवल है यानी हाइपोथेटिकल लेवल से जो है कितनी की स्प्लिटिंग हुई है और किस डिस्टेंस पे जो है कितने सेपरेटेड है वो अपने हाइपोथेटिकल लेवल से। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। इसे कह लो इक्वेशन नंबर 9। सो यहाँ पे हमारे पास पी एस कॉन्फिग्रेशन है। मान के चलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी ऑर्बिटल में एंड द सेकेंड वन इज योर एस ऑर्बिटल। तो L1 इज गिवन बाय 1, S1 इज गिवन बाय हाफ एंड J1 क्या हो जाएगा, L1 प्लस S1 से L1 माइनस S1 तक लाई करेगा तो J1 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 होगा, और एक क्या होगा हमारे पास 1/2 होगा, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। ऐसे ही हमारे पास S1 एक इलेक्ट्रॉन हमारा S में है तो L2 ऑर्बिटल तो क्या होगा, 0 होगा, और मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 होगा, स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 ही रहेगा। और J2 निकालूं तो टोटल क्वांटम नंबर फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन तो वो कहाँ क्या रहेगा हमारे पास, हाफ रहेगा, ठीक है। अब देखो हम केस निकालेंगे कि हमारे पास जो है जब J हाफ है, J1 J2 हाफ है, अब दोनों लेके चलते हैं क्योंकि हमें JJ कपलिंग करनी है। सो J1 हाफ है, J2 भी हाफ है, तो J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक। तो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास 0 और 1, ठीक है। तो 1 ऐड करोगे तो माइनस करोगे तो 0। सो 0 1 हमारे पास J की वैल्यू आ गई। ऐसी J 3/2 है और 1/2 है, तो हमने देखा J की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 यानी कि 2 आ जाएगी, और 3 माइनस 2 2/2 दैट इज 1, यानी कि J की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 2 आ जाएगी। सो इसको हम डेजिग्नेट कैसे करेंगे, इस तरह से लिखेंगे J1 J2 और J की वैल्यू। सो हमने देखा 1/2 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 1। इसको कैसे डेजिग्नेट करोगे कि हमारे पास जो है 3/2 और 1/2 पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1 एंड 2। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। लोअर वैल्यू पहले लिखते हैं फिर हायर वैल्यू, ठीक है। तो 3/2 1/2 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1 एंड 2। क्लियर है यहाँ तक। what we need to calculate, we need to calculate the interaction energy gamma 1 gamma 2 gamma 3 and gamma 4। so gamma 1 plus gamma 2 इसका सम जो है हमने निकाला था, ठीक है। तो वो वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारे पास। अब हम केस लेके चल रहे हैं, आप अलग अलग केस लेके चलोगे, तो हम केस लेके चल रहे हैं 1/2 और 0 वाला, ठीक है। तो 1/2 1 का भी करेंगे, 3/2 1/2 1 एंड 2 दोनों केस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1/2 0 के लिए, अब देखो कैपिटल J इज 0, J1 इज हाफ एंड J2 इज हाफ, वी नो दैट, ठीक है ना। कैपिटल J इज 0, पी हमारे पास हमें पता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमारा P में है, तो L1 इज ऑलवेज 1, ठीक है ना, ये भी याद रखना। सो गामा 1 प्लस गामा 2 दैट इज गिवन बाय A बाय में 2 J स्टार का स्क्वायर माइनस J1 स्टार का स्क्वायर माइनस J2 स्टार का स्क्वायर। सो A बाय में 2 J स्टार क्या होता है बेसिकली, J प्लस 1, J1 क्या है, स्टार क्या है, J1 प्लस 1 माइनस J2 प्लस 1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, A बाय में 2 J हमें पता है दैट इज 0, और J1 J2 क्या है 1/2। सो ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3A बाय में 4। तो यहाँ पे अभी हमें A निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट A। सो A जो है दैट इज गिवन बाय A1 B1 प्लस A2 B2, अभी ये छोड़ दो, ठीक है ना, अभी हमें A निकालना है। सो अभी गामा 1 प्लस गामा 2 फॉर द केस 1/2 0 के लिए क्या निकल के आया, -3/4A। क्लियर होगी बात। अब हमें गामा 3 और गामा 4 भी तो कैलकुलेट करना है। तो गामा 3 इज गिवन बाय A3/2 J1 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर, ठीक है। J1 स्टार को आप क्या लिखोगे, J1 प्लस 1, ठीक है ना। ऐसे L2 लिखोगे, L1 लिखोगे L1 प्लस 1, S1 स्टार लिखोगे S1 प्लस 1, ठीक है। तो हमें पता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि L1 के केस में हमारा PS कॉन्फिग्रेशन ले रहे हैं ना, तो L1 इज 1, ठीक है ना, L1 इज 1 और S1 इज ऑलवेज हाफ, तो ये क्या आ जाएगा -3/4, ये क्या आ जाएगा 1 और 1 प्लस 1 यानी कि 2, और J1 इज हाफ तो हाफ और 3/2। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी -A3, आप कर सकते हो 3/4 -3/4, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो -2A और क्या आ जाएगा -3A3। ऐसी गामा 4 वी हैव टू कैलकुलेट, तो दैट इज A4/2 J2 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर। सो A4/2, अब L2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज इन S ऑर्बिटल, तो L2 इज 0, तो हम देखेंगे कि हमारा A4 भी क्या आ जाएगा, गामा 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 3/4 -3/4 0, ठीक है। तो हम जो है इस तरह से मैं अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको,
फॉर द केस हमारे पास गामा 3 प्लस गामा 4 जो है इनका सम मैं करूँ तो गामा 3 तो हमारे पास आया था -A3 और गामा 4 इज 0। सो 1/2 0 के लिए हमारे पास गामा 3 प्लस गामा 4 का सम क्या आ गया -A3 और गामा 1 प्लस गामा 2 का सम क्या आया -3A/4। और अभी ए हमें नहीं पता है, वो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, A1B1 प्लस A2B2 से। ठीक है। सिमिलरली फॉर द केस आप कैलकुलेट करोगे फॉर द केस 1/2 के लिए, यानी कि J1 हाफ है J2 हाफ है, पर जो टोटल एंगुलर मोमेंट है दैट इज गिवन बाय 1। सो कैपिटल J इज 1। तो हमारे पास गामा 1 प्लस गामा 2 क्या आ जाएगा, A/2 सेम फॉर्मूला। सो हम लगाएंगे तो J स्टार यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 -3/4 इट कम्स आउट टू बी A/4। तो अभी A हमें निकालना है, ठीक है, इस केस के लिए भी। ऐसे ही गामा 3 और गामा 4 आप कैलकुलेट करोगे तो A3/2 J1 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर। तो A3/2 J1 इज हाफ, तो हाफ प्लस 1 यानी कि 3/4 हो जाएगा, ये भी 3/4। और L1 है तो L1 है दैट मीन्स 1 है फर्स्ट, इन मतलब फर्स्ट P की बात हो रही है, P की बात हो रही है तो 1 और 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया -A3, दोबारा से क्या आ रहा है देखो -A3। ऐसे ही गामा 4 आप कैलकुलेट करोगे तो गामा 4 का फॉर्मूला यही था, J2 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर। देखो कोई चेंज नहीं आएगा, ये फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो हमने देखा कि गामा 3 प्लस गामा 4 का सम द्वारा से क्या आ रहा है -A3 आ रहा है, किसके लिए, 1/2 के लिए। सो 1/2 के लिए भी हमारे पास क्या आ रहा है -A3 आ रहा है। तो मैं इस तरह से लिख दूं कि गामा 3 प्लस गामा 4 इज बेसिकली -A3 फोर 1/2 0 1 के लिए। ठीक है। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, हमने गामा 1 गामा 2 जो है 1/2 0 1 दोनों के लिए निकाल लिया है। गामा 3 प्लस गामा 4 भी हमने क्या है दोनों के लिए निकाल लिया है। ठीक है। ऐसे ही अब हमें क्या करना होगा, 3/2 1/2 एक बार तो हम 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे और एक बार हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 1 के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे सो गामा 1 प्लस गामा 2 आप कैलकुलेट करोगे फॉर J इज इक्वल टू 1 के लिए, तो फॉर्मूला वही रहेगा A/2 J स्टार का स्क्वायर माइनस J1 स्टार का स्क्वायर माइनस J2 स्टार का स्क्वायर। सो J+1 माइनस J1 और J2 J1 इज गिवन बाय 3/2 एंड J2 इज गिवन बाय 1/2। सो और कैपिटल J इज 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, 3/2 5/2 माइनस 1/2 और 3/2। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी -5A/4। सो गामा 1 प्लस गामा 2 वी हैव कैलकुलेटेड फॉर J इज इक्वल टू 1, इट कम्स आउट टू बी -5A/4। सिमिलरली गामा 3 आप कैलकुलेट करोगे तो गामा 3 आ जाएगा A3/2 J1 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर। सो जब आप वैल्यू पुट करोगे J1 इज गिवन बाय 3/2 एंड J2 S1 इज ऑलवेज 3/4 S1 स्टार का स्क्वायर, तो 3/4 आएगा, ये 5/2। और L1 यानी कि कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, P है, तो P के लिए L1 इज 1 एंड 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो वी हैव कैलकुलेटेड इट कम्स आउट टू बी A3/2। सो गामा 3 वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज A3/2, क्या आ जाएगा हमारे पास 15/4 माइनस 2 माइनस 3/4, सो A3/2 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही गामा 4 आप कैलकुलेट करोगे तो A4/2 J2 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर। वी नो दैट फॉर S टर्म L2 इज 0, कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज इन L ऑर्बिटल, सो L2 में है। ठीक है। सो L2 इज 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, J2 इज ऑलवेज, यहाँ पे हम कौन सा केस ले रहे हैं, 3/2 1/2 1 का। सो J2 इज लाइक आपके पास 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस 3/4, इट कम्स आउट टू बी 0। तो ये हमने देखा कि गामा 3 कम्स आउट टू बी A3/2 एंड गामा 4 इज 0 फॉर द केस 3/2 1/2 एंड 1। और गामा 1 प्लस गामा 2 क्या निकल के आया, दैट इज -5A/4। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर द केस हमारे पास वो 3/2 और 1/2 के लिए गामा 3 प्लस गामा 4 क्या निकल के आएगा, A3/2। अब आपने जैसे मैंने 1 के लिए करके दिखाया ना, आप 2 के लिए भी करोगे, J2 के लिए इट कम्स आउट टू बी द सेम A3/2। सो ये अब आपका होमवर्क है, एक आप करके देखोगे कि J2 के लिए आप चेक करोगे कि गामा 3 प्लस गामा 4 जो है क्या यही आ रहा है A3/2। सो लेकिन अब हम चेक करते हैं कि गामा 1 प्लस गामा 2 फॉर द केस 3/2 1/2 J इज इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है। तो J इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, 2 प्लस 1 यानी कि 3, J1 इज 3/2 और 5/2 हो जाएगा, और
-3/4 हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 6a/8 यानी कि 3a/4। तो यहाँ से हमारे पास जो है Γ1 + Γ2 फॉर द केस 3/2 और 1/2 1 2 के लिए क्या निकल के आया 3a/4। अब हमें ये तो पता है कि हमें हर बार क्या चाहिए, Γ1 Γ2 कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है a की वैल्यू चाहिए। तो a क्या है, दैट इज a1 b1 + a2 b2 एंड वी नो दैट जो b1 और b2 है वो हमें कहाँ से मिलेंगे। सो b1 b2 आपको इस इक्वेशन नंबर 7 से मिलेंगे। तो हमें जो है, मैं क्या करूँगी, अभी मैं डायरेक्टली जो है मैं लिख रही हूँ फॉर द केस, दोनों केस के लिए मेरे पास जो निकल के आता है रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिखूंगी, आपको करके दिखाना। सो जब मैं b1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँगी, ठीक है ना, j1 j2 इन सब से कैलकुलेट करूँगी, तो जब मेरे पास निकल के आएगा, सो 1/2 0 1 के लिए जो है b2 हमारा 0 निकल के आएगा और b1 निकल के आएगा -1/3। ऐसे 3/2 1/2 1 2 के लिए b2 0 निकल के आएगा और b1 निकल के आएगा आपका प्लस का 1/3। सो कैपिटल ए इज a1 b1 + a2 b2। सो 1/2 1/2 0 1 के लिए दैट इज -1/3 a1 और 3/2 1/2 1 2 के लिए दैट इज प्लस a1/3। ठीक है, तो हम पुट करेंगे सब में वैल्यूज। सो Γ1 + Γ2 हमने 0 के लिए जब कैलकुलेट करा था तो -3a/4 आया था पीछे। सो 3a/4 ए हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, -a1/3 पुट करने वाले हैं। तो क्या निकल के आ गया, माइनस माइनस प्लस 3a1/12। ऐसे ही Γ1 + Γ2 जो है हम कैलकुलेट कर रहा था हमने 1/2 1/2 1 के लिए, सो 1 के लिए, सो दैट कम्स आउट टू बी a/4। अब a की वैल्यू क्या है, -a1/3 है, तो क्या आ गई -a1/12। ऐसे ही 3/2 1/2 1 के लिए हमने देखा था 5a/4 आया था और -5a/4 आया था, और a यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं हम, a1/3 पुट करने वाले हैं, तो क्या आ गया -5a1/12। ऐसे ही Γ1 + Γ2 फॉर द केस 3/2 1/2 और 2 के लिए, j2 के लिए इट कम्स आउट टू बी 3/4a। तो हमारे पास क्या आ गया 3/4 a1/3 और क्या आ जाएगा 3a1/12। तो हमने सभी के लिए निकाल लिया है। तो अब हम जो है इसको हम जो है किस तरह से एसपी कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह से जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो हमने हाइपोथेटिकल लेवल Γ0 हमने डिनोट किया, ठीक है ना। अब हमें पता है कि a3/2 से कौन सा स्प्लिट हो गया था हमारा, 3/2 1/2 वाला जो है लेवल जो था 3/2 और 1/2 वाला जो लेवल था जिसमें हमारे पास 1 और 2 दैट इज a3/2 से अपवर्ड शिफ्ट हुआ था, और 1/2 0 1 वाला लेवल था जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ -a3 से। सो J0 है, J1 है, J1 है, J2 है, ठीक है। सो J1 और 2 जो है ये फर्दर जो है स्प्लिट हुए हैं अपने अपने लेवल्स में, ठीक है। जो स्प्लिट हुए हैं तो वो हाइपोथेटिकल इस लेवल से कितने सेपरेशन पे हैं, तो हमने निकाला कि जो हमारे पास J1 वाला था तो इट कम्स आउट टू बी -5a1/12 और J2 जो है 3a1/12, ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। Γ1 + Γ2, तो Γ1 + Γ2 J1 के लिए हमने निकाला दैट इज -a1/12 एंड J0 के लिए हमने निकाला था 3a1/12। तो ये हमने सब कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे 1/2 0 के लिए J0 के लिए 3a1/12 से सेपरेशन है, तो 3a1/12 से सेपरेशन है पॉजिटिव। ऐसे ही Γ1 + Γ2 जो है सेपरेटेड है J1 के लिए दैट इज -a/12 से, तो -a/12 से सेपरेटेड है। ऐसे ही आपके पास जो नेक्स्ट थी, ठीक है। सो Γ1 + Γ2 -5a1/12 से सेपरेटेड है फॉर J1, सो -5a1/12 से सेपरेटेड है। ऐसे ही J2 के लिए जो है हमारे पास क्या लेवल आया है, सो J2 के लिए हमारे पास आया है दैट इज 3a1/12, तो 3a1/12। तो ये आप जो है कर लोगे। सो ये एनर्जी लेवल जो है आप ड्रॉ कर सकते हो एसपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन जेजे कपलिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, तो थैंक यू सो मच।